A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know very well, from the previous class we have started the chapter of your macroeconomics, chapter 7, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. Okay, so in the last class we have already discussed about the introduction. Next we have discussed about the aggregate demand, or aggregate demand is also called as aggregate expenditure. So aggregate demand is sum total of demand for all the goods and services which is produced in an economy during an accounting year. Means ki sum total of all the goods, which is sum total of demand of all the goods and services in an economy during an accounting year. Okay, so it is aggregate demand is related to the income. So when income level increases, demand of the commodity will also be increases. When income level decreases, so demand of the commodity will also be decreases. Okay, so after that we have started the components of the aggregate demand. So in the components of the aggregate demand we have discussed, that is AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. So where C is a consumption expenditure which is done by the household sector. Here we are talking about the four sector model. Okay, households there are four sectors in an economy. First one is, that is household sector. Second one is producer sector, government sector and the rest of the world. Right? So household sector, consumption is done by the household sector, investment is done by the producer sector. G is for government, so it is done by the government sector, and this is net export, export minus import. Till we have already discussed in the last class. In today's class we are going to study the further topic, that is component of aggregate demand in two sectors. So when we talk about the aggregate demand in two sector model, we will take the two sector, that is household sector and the producer sector. Right? So let's get started. The topic is here, that is components of aggregate demand in two sector economy. ठीक है, अभी तक हम लोग ने components पढ़ा, components of aggregate demand, components of aggregate demand in a two sector economy, two sector economy. ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी और टू सेक्टर मॉडल. अब देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी हम लोग ने पढ़ा है, फोर सेक्टर इकोनॉमी में होता है, दैट इज हाउस सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड. अब इसमें कह रहा है कि हम लोग को एग्रीगेट डिमांड देखना है इन टू सेक्टर इकोनॉमी. जब हम लोग बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो टू सेक्टर को लेते हैं, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर. ये हम लोग ने ऑलरेडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा है. हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में है जो हम लोग अपने कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं. सेकेंड हो जाएगा दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जिसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग देखते हैं, जो किस पे डिपेंड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और दी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. तो कह रहा है इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी हैज़ टू कंपोनेंट्स. एडी एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में एडी बोल रहा है. तो एग्रीगेट डिमांड के क्या है, टू सेक्टर्स होते हैं, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड दी प्रोड्यूसर सेक्टर. सो टू सेक्टर इकोनॉमी कंप्राइजेस हाउस होल्ड सेक्टर एंड दी प्रोड्यूसर सेक्टर. दस aggregate demand or aggregate expenditure in a two sector economy is sum total of consumption and the investment. अगर हम लोग बोलेंगे कि AD in a two sector economy that means sum total of the household sector and the investment, कि कितना एक्सपेंडिचर, कितनी कमोडिटी की डिमांड हाउसहोल्ड सेक्टर कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी. वहीं अगर हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सेक्टर इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किस में बोलेंगे, कि तीन जो हम लोग सेक्टर ले रहे हैं, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट, ये तीनों मिला के कितना डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि
टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़े हैं, तो इन दिस AD इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द इन्वेस्टमेंट सेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करता है, डिमांड किसके लिए करता है, फॉर डिमांड फॉर कंजप्शन। मतलब वो हम लोग जो है, हम लोग डिमांड क्यों करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, वैसा कि कमोडिटी को परचेज और सोल्ड, हम लोग सोल्ड करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपनी जो भी एक सेटिस्फेक्शन है उसको फुलफिल करना है। इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड किसके लिए कर रहा है, कंजप्शन के लिए कर रहा है। वही प्रोड्यूसर सेक्टर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब प्रोड्यूसर सेक्टर डिमांड क्यों कर रहा है, फॉर दी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, एंड देन हाउस होल्ड सेक्टर उस कमोडिटी को परचेज करेगा। इसीलिए ये सारे जो कंसेप्ट हैं, टॉपिक है, वो हम लोग एक शुरू में ही पढ़ लिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, उसमें हम लोग ने देखा था ना ये, इसीलिए वो सारी चीज़ को लिंकअप करने के लिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है, दैट मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड क्यों करता है, फॉर द कंजप्शन, एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, दस AD इज इक्वल टू, जो हम लोग AD इज इक्वल टू फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या पढ़े थे, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे AD इज इक्वल टू C प्लस I ओनली, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो AD इज फॉर एग्रीगेट डिमांड, C इज फॉर कंजप्शन एंड E इज फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक, सो अभी तक क्या देखा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हम लोग ने लास्ट क्लास में फोर सेक्टर इकोनॉमी देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी में, जिसमें टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड क्यों करता है, फॉर दी कंजप्शन पर्पस के लिए करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर डिमांड क्यों करता है, फॉर दी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो दस इन द टू सेक्टर इकोनॉमी AD इज इक्वल टू C प्लस I, मतलब AD इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब हम लोग इसी चीज को क्या है विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड द डायग्राम समझेंगे। अब थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होंगी, बट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको पता है इन द फर्स्ट क्लास से बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी अजम्पशन। हम लोग हमेशा अजम्पशन लेके ही चलते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो हम लोग पहले अजम्पशन ले लेते हैं ना कि सारी चीज़ें क्या, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ये सारी क्या है, एक अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी जब तक हम लोग ये सारी कंसेप्ट को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको डील करने के लिए पहले अजम्पशन ले रहा है। अजम्पशन मतलब कुछ हम अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम क्या कर रहे हैं, दैट इज C बार। अब छोटे छोटे जो कंसेप्ट आएंगे उनको समझना है। C बार दैट इज 50 लिया गया है और B इज 0.5। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये C तो है, उसके C तो हम लोग ने देखा था कि AD इज इक्वल टू C प्लस I, C मतलब वहाँ पे कंजप्शन था, बट अब C के ऊपर ऐसे बार लगा दिया गया और यहाँ पे B लिया गया। अब देखिए जो एक ये टर्म है दैट इज C बार, दिस इज फॉर द ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब एक कंजप्शन तो अभी तक तो ठीक था, अब ये ऑटोनॉमस क्या आ गया, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन का एक छोटा सा एग्जांपल है कि एज अ स्टूडेंट होते हैं, उनके पास क्या कोई लेवल ऑफ कोई इनकम होती है। मतलब एज अ स्टूडेंट मैं हूँ 1 2 3 4 जिस क्लास में पढ़ी हूँ अभी तक ग्रेजुएशन, तो मेरा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बट क्या मेरी इनकम नहीं है तो क्या मैं कंजप्शन भी कुछ नहीं कर रही हूँ, ज़ीरो है, मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, दैट आई एम नॉट वेयर एनीथिंग, या मैं बाहर कहीं पे जा नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे क्या है कि हम लोग का इनकम ज़ीरो भी होगी तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम
करते रहेंगे। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग घर पे रह रहे हो, यू ऑल आर डिपेंडेंट ऑन योर मदर एंड फादर, ठीक है, आप उन पे डिपेंडेंट हो। तो क्या ऐसा है कि आपको मम्मी पापा खाना नहीं दे रहे? नहीं, आज तुमको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी कोई इनकम नहीं हो रही, नहीं। इसी को बोलते हैं दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसको डिनोट करते हैं सी बार से। इसका सिंपल सा मतलब है कि व्हेन द इनकम लेवल ऑफ जीरो, इनकम लेवल क्या है, जीरो भी है, स्टिल कंजप्शन विल रिमेन। कंजप्शन क्या है, वो चलती ही रहेगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजप्शन। अगर इनकम जीरो भी है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। दिस इज बी। बी इज फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये टर्म क्या है, एमपीसी, इसको शॉर्ट में एमपीसी बोलते हैं। अब ये नया टर्म क्या आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी और डिजायर टू कंज्यूम समथिंग, कि आप में कितनी इंटेंस है। आप कोई भी कमोडिटी मिल रही है, आपको चॉकलेट मिल रहा है, तो आप कितना ज़्यादा उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए कितना ज़्यादा इंटेंस हो, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका इनकम के साथ रिलेशन यही होता है कि इनकम को डेनोट हम लोग करेंगे वाई में इनकम में कितना चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है। इनकम अगर हमारी, फॉर एग्जांपल इनकम हमारी 100 से 200 हो गई, ठीक है, मेरी इनकम पहले पिछले मंथ में 100 रुपीज़ मुझे मिलता था, इस मंथ में मुझे 200 मिल रहा है। अब इस इनकम के बढ़ने से मेरे कंजप्शन पे क्या चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल पहले मैं हो सकता है चिप्स की 80 कॉमोडिटी को कंज्यूम करें, मतलब 80 रुपीज़, अब क्या है मेरी रुपीज़ 200 हो गई। मतलब अगर फॉर एग्जांपल राइस और वीट ले लेते हैं तो 80 यूनिट्स ले रही थी, अब मेरी इनकम में अगर बढ़ी है मेरी इनकम 100 से 200, तो मेरा जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं 120, तो इन दोनों के चेंज होने पे इनकम के 100 से 200 होने में कंजप्शन में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल का याद होगा आप लोग को, मार्जिनल कॉस्ट और ये सब हम लोग पढ़े थे। तो हमेशा हम लोग क्या करते थे, टीआर और टीसी में से अगर टीआर है और एमआर निकालना आता था, मार्जिनल रेवेन्यू, तो 10, 20, 60, 80 अगर दिया रहता तो मार्जिनल हम लोग कैसे निकालते थे, पहला 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों बीच का डिफरेंस, ऐसे निकालते थे। तो सेम एमआर है। एमआर किसके बीच का रिलेशन बताता है, इनकम और कंजप्शन के बीच का, कि इनकम के कितना चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने दो अजम्पशन ले लिया। अजम्पशन ये ले लिया है कि ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा 50 है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा 50 और एमपीसी का 0.5 होने का मतलब है कि अगर हमारी इनकम 1 है, फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए असम्पशन यहीं पे चलता आएगा आपका, अगर हमारी इनकम 1 है तो 1 का 0.5 हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकम के कितना चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, ये बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीसी अगर यहाँ पे 0.5 है और इनकम अगर हम लोग ने 1 ले लिया, मतलब 50% हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और 50% हम क्या करेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एमपीसी इज हियर 0.5। तो अब इसके बाद एक कंजप्शन फंक्शन बनेगा, उसको बोलेंगे, हाँ, और एक और चीज यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दैट इज आई यहाँ पे लेंगे 100। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी सेम, कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम के चेंज होने पे भी इनकम के चेंज होने पे भी इन्वेस्टमेंट हमें हमारा चेंज नहीं होगा। ये सारे कंसेप्ट आगे भी पढ़ेंगे। तो I इज इक्वल टू 100, मतलब कि यहाँ पे इनकम में चाहे जितना भी, देखिए हर एक रिलेशन, सेविंग पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, कंजप्शन पढ़ेंगे, सबका रिलेशन हम हमेशा इनकम के साथ ही करेंगे, क्योंकि पूरी सारी चीज़ें हमारी इनकम पे ही बेस्ड है। हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कंजप्शन भी बढ़ाएंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कुछ पार्ट कंज्यूम करने के बाद कुछ पार्ट सेविंग भी करेंगे। जैसे आप क्या अगर सैलरी आती है 50,000, 40,000 जो भी आ रही है, तो घर पे क्या लोग करते हैं कि जितना कंजप्शन है उसका बाकी जो बचा है उसको सेव कर देते हैं। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो हम कंजप्शन जो करेंगे ही करेंगे, बाकी जो बचा हम वो
सेव करेंगे। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मतलब कि इनकम में चाहे जितना भी चेंज हो जाए बट इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक हम लोग एक कंजप्शन फंक्शन ले लेंगे, C इज इक्वल टू 50 प्लस, हाँ कंजप्शन फंक्शन ही पहले देख लीजिए, C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया C इज इक्वल टू C बार आपका दिया है 50, MPC दिया है यहाँ पे 0.5 और y इज हियर इनकम। तो ये कंजप्शन फंक्शन है, इसको भी आगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा वो यही होगा। ये ऑटोनॉमस, ये हम लोग ने कंजप्शन फंक्शन ले लिया है। कंजप्शन फंक्शन होने का मतलब है कि आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट नॉट मोर देन दी इनकम। ठीक है, अब मेरा अगर हम लोग का कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म है इसके लिए, दैट इज डिस सेविंग। डिस सेविंग होने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 50,000 है। ठीक है, मेरी इनकम अगर 50,000 है और मेरी इनकम 50,000 हुई, इनकम बढ़ी मेरी 60,000। ठीक है, तो मेरा कंजप्शन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, बट कंजप्शन कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि अगर हम लोग कंजप्शन, मेरी इनकम 60,000 हुई, कंजप्शन अगर हम लोग 80,000 करने लगे तो वो 20,000 का जो गैप है वो कहाँ से आएगा। इसके लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, जो पहले की सेविंग कर रखे हैं ना कहीं पे सेव, उसको निकालेंगे। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ ना कि आज हम लोग बस देख रहे हैं, तो इसीलिए इसको कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। कंजप्शन फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन होता है कंजप्शन और इनकम के बीच में। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट नॉट मोर देन दी इनकम। वो कभी भी इनकम से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। सो दिस इज द कंजप्शन फंक्शन। सो C इज फॉर हियर फॉर कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू C बार, मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी ऑटोनॉमस कंजप्शन, प्लस B इज हियर MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड Y इज हियर दैट इज इनकम। ठीक है, अब इसके बाद एक टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पे 1 2 3 4, दिस इज फर्स्ट जो होगा वो आपका होगा लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम मतलब इनकम कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डेनोट, इनकम को डेनोट करते हैं Y से, याद कर लीजिए इनकम को डेनोट करते हैं Y से। नेक्स्ट हम लोग लेंगे कंजप्शन, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट अलॉन्ग विथ मी, आप लोग इसको लिखते चलिए साथ में। कंजप्शन इज C। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज हियर I। ठीक, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, दैट इज C प्लस I। सो AG इज इक्वल टू C प्लस I। अब यहाँ पे हम लोग डेटा को फिल करते हैं। डेटा हम लोग फिल करेंगे, दैट इज 0 50 100 200 300 400 और 500। ठीक है, ये लेवल ऑफ इनकम क्या है, लेवल ऑफ इनकम होने का मतलब है कि हमारी इनकम क्या है, देखिए 0 थी पहले, फिर इनकम इंक्रीज हो रही है 50 100 200 300 400 500। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज कंजप्शन। कंजप्शन हम लोग 50 कर रहे हैं, देन 75 100 150 200 250 300। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने बताया था कि इनकम के चाहे इनकम जितना भी चेंज हो जाए बट कंजप्शन इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं चेंज होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज 100, सो सारा ही आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि इनकम के चेंज होने पे भी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो देखिए, अब यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ इनकम दिया है 0,
50, 100, 200, 300 एंड 400 एंड 500। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कह रहा है कि ऑटो कंजप्शन, यहाँ पे देखिए इनकम हमारी ज़ीरो है, इनकम इज ज़ीरो, बट तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने वही दिया था कि अगर हम लोग क्या है, कोई भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तब भी हम ऐसा नहीं कि कंजप्शन करना बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम कंज्यूम हमेशा करते हैं। तो जब इनकम ज़ीरो है तो भी हम लोग 50 कंज्यूम करें, दैट इज इट इज़ दी ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, अब ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया क्योंकि इनकम ज़ीरो है तब भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रही है, 50, 100, 200, 300, 400, 500। इनकम के इंक्रीज होने के साथ कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 50 से 75, 75 से 100, 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि चाहे इनकम में जितना भी चेंज आए, इन्वेस्टमेंट में कभी भी चेंज नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, सॉरी, चाहे इनकम में जितना भी चेंज आए, इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हर एक लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या है, 100 है। अब यहाँ पे हमें निकालना है AD इज इक्वल टू C प्लस आई। C प्लस आई आने होने का मतलब है कि C ये है, I ये है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम करेंगे 50 प्लस 100, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400। ठीक है, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400। ठीक है, यहाँ पे AG इज इक्वल टू C प्लस आई हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे, बट इसके पहले एक इसका हम लोग डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इनकम और यहाँ पे ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इनकम यहाँ पे क्या क्या है, आप इनकम देख लो। 100 200 से स्टार्ट करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड लेना है, जो AG और AG का सम आया C प्लस आई, दैट इज 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अब हम लोग एक एक को बनाते चलते हैं। C को बनाएंगे, I को बनाएंगे, देन AD को बनाएंगे। I देखिए, I क्या है, हर एक लेवल पे क्या है, कांस्टेंट है। तो 100 पे हम लोग इसको पैरेलल टू दी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ना, क्योंकि 0 लेवल पे भी ये क्या है, 100 है। 50 लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या है, ये 100 है। 100 लेवल ऑफ इनकम पे भी 100 है। देन 200 पे भी ये 100 है, 300 पे भी 100 है, 400 पे भी 100 है और 500 पे भी ये 100। इसलिए क्या हो गया, ये पैरेलल टू दी x एक्सिस। नेक्स्ट हम लोग को बनाएंगे दैट इज C, मतलब कंजप्शन। कंजप्शन के लिए हम लोग देखते हैं, कंजप्शन के लिए क्या करेंगे कि जब लेवल ऑफ इनकम 0 है तब भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन है। ठीक है, तो जब हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं 0 लेवल ऑफ इनकम से, तो ये क्या होगा, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 100 इसका हाफ करेंगे 50। नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है, आपका 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। देन 50 पे 100, फिर ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कंजप्शन लाइन हो गई। कंजप्शन लाइन ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, ऑटोनॉमस, बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या कहता है कि हमारी इनकम क्या है, 0 रहेगी तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम जब कंज्यूम करते रहेंगे, तो ये जो कर्व है आपका, ये ओरिजिन से ना स्टार्ट होके ये कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ये आपका हो गया C और I। अब इन दोनों को सम करेंगे तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई। अब 0 लेवल पे भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो 150 होने के बाद ये आपकी लाइन, अब इसको बना लीजिएगा। 50 होने पे 175, 100 पे 200, 200 पे 250, 300 पे 300,
400 पे 350, 500 पे 400। तो ये आप इसको पैरेलल ड्रॉ कर लेना। वेट अ मिनट। सो AD इज इक्वल टू C प्लस I, मतलब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया I इज फॉर इन्वेस्टमेंट, C इज फॉर कंजप्शन, AD इज इक्वल टू C प्लस I। अब इसमें कह रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन लिखा है नीचे, C इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। C मतलब कंजप्शन क्या है? ये पॉजिटिव फंक्शन है इनकम का। इनकम के साथ इसका पॉजिटिव फंक्शन है, एकदम है, क्योंकि इनकम जब हमारी बढ़ेगी देन कंजप्शन विल ऑल्सो भी इंक्रीजेस। कंजप्शन भी क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि विद द राइज इन इनकम, इनकम के राइज होने पे कंजप्शन इंक्रीजेस एंड वाइसे वर्सा। उसका जस्ट क्या होगा? अगर इनकम हमारी कम होगी तो आपका जो कंजप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर कह रहा है हाउएवर परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम, बट जो परसेंटेज इंक्रीज होगा इनकम में, कंजप्शन में, इट शुड बी लेस देन द इंक्रीज इन द इनकम, क्योंकि जब भी इनकम इंक्रीज हो रहा है कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, बट कंजप्शन जो परसेंटेज ऑफ कंजप्शन इट शुड बी लेस देन द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, सो इट इज बिकॉज आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ कंजप्शन पीपल टेंड टू इंक्रीज लेवल ऑफ सेविंग ऑल्सो। ये इसलिए हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ जैसे ही लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उनके में एक हैबिट बढ़ जाती है कि दे आर टेंड्स टू इंक्रीज देयर सेविंग्स। वो क्या है? वो ज़्यादा अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज कर देते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ता है, बट कंजप्शन कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ दी पीपल क्या है, अब वो अपनी इनकम को सेव करने लगते हैं, वो उसको कंजप्शन में, कंजप्शन कम करके वो सेविंग को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो कंजप्शन कर्व स्लोप अपवर्ड। ठीक है, जो कंजप्शन कर्व है ये देखिए, ये क्या कर रहा है? ये स्लोप अपवर्ड, ये अपवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है किसके साथ? इनकम के साथ। इनकम के साथ इसका क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है ना, कि जैसे ही क्या होगा जैसे ही इनकम इंक्रीज करेगी सो कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है आई इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने आई को क्या लिया है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लिया है। ठीक है, सो विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। जो लेवल ऑफ इनकम से क्या होगा? वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करती है। अगर इनकम बढ़ती भी है तो अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करती है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो क्या है? पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, ओके, एज इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। क्योंकि ये क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो क्या होती है? जो लेवल ऑफ इनकम है उससे वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी मतलब नहीं होता है, चाहे इनकम जितनी भी इंक्रीज हो। तो ये इसका इनकम से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे इनकम जितनी भी इंक्रीज हो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज होगा। सो एडी इज द सम ऑफ सी एंड आई। एडी क्या है? वो किसका सम है? एडी इज सम ऑफ दी सी प्लस आई, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का सम है। एंड एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। और एडी का जो कर्व है वो क्या है? पॉजिटिवली स्लोप्ड है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो कंजप्शन होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। कंजप्शन हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि वो निगेटिव हो सकता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आदमी कुछ ना कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा ही करेगा। सो दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक नेसेसिटीज फॉर सर्वाइवल। क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर करता ही आदमी फॉर द बेसिक सर्वाइवल। उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसे बेसिक जो एक्सपेंडिचर है वो करना ही पड़ेगा। दस एट दी जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या हो जाएगा? जब हम लोग जीरो लेवल ऑफ इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग लेके चल रहे हैं सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, सो सी इक्वल टू सी बार प्लस, अगर यहाँ पे इनकम हम लोग ने अज्यूम किया है कि इनकम इज जीरो, वाई इज जीरो, तो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो लेंगे तो सी इक्वल टू सी
बाहर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब कंजप्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट, कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, कि जो भी कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे होंगे। So this is your components of the aggregate demand in two sector economy. So what we have discussed in today's class, हम लोगों ने पढ़ा कि components of the aggregate demand in two sector economy. So in two sector economy, household sector and the producer sectors are there. So यहाँ पे assumption लिया, autonomous consumption होता है B और I is autonomous investment, एक टेबल के फॉर्म में बनाया एंड देन उसको ग्राफिकली हम लोगों ने क्या किया, एक इसको प्रेजेंटेशन किया विद द हेल्प ऑफ दी वन डायग्राम एंड देन ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर हमारी इनकम क्या होती है, 0 होती है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास।